Hmm. हर हर महादेव. Har Har Mahadev. So I just wanted to ask you questions to you, Sureshji. Yes, yes. I have few doubts regarding reincarnation. Is reincarnation possible? Yeah, of course, very much possible. If I How talk about does it actually reincarnation, happen? okay, Ah, reincarnation, rebirth, or mm, coming back to life after death, mm, uh, it is the only concept which was found in Sanatan Dharma. Like no mm, other religion, believed in this. No other religion was ready to believe this. There was something called rebirth or reincarnation. mm, If you look at the, like some years back, like not some years, like few decades back, before starting the common era. So the people never believed in reincarnation. mm, uh, reincarnation के बारे में अगर आपको बताऊं, so now there are some famous world famous institutions like Harvard University, MIT, Princeton, or Oxford. These all universities, including some Indian universities, they are doing research on reincarnation, and they have found some undeniable proofs that there is reincarnation of most of the people. Actually, reincarnation is of every living being. I'm talking about the human being. They have a very strong consciousness. So I was just going through a kind of article which was published, I think, few years back. So MIT University, which is based in United States of America, they have gathered around 1100 or 1200 cases of reincarnation across the world. Got it. So somebody believes in reincarnation or doesn't believe in reincarnation, the person will come back to life. Got it. And reincarnation, like we discussed, is completely and is an independent fundamental principle of universe. Got it. Reincarnation is a phenomena of life that whatever you do in this current life will add values that what kind of birth you will get in your next life. okay. Depending upon your current karma or the current account that you are trying to accumulate, the karma, the deeds, the bad deeds or good deeds, अच्छे कर्मा बुरे कर्मा जो भी आप इस लाइफ में करते हो, ये सारे के सारे कर्मा will accumulate at the end of the death, or maybe after you have died. So all these karmas and all these deeds that you have collected from the current birth will conclude and will help that what kind of birth you should get in your next life. It can be a downgrading. Maybe you are living a very selfish life. बहुत सारा पैसा कमाया आपने, लोगों के साथ अत्याचार करा. You killed many people. Got it. You devalued so many people. You brought some disgrace to the society. You did some heinous crime in the society. You brought something very bad thing to humanity at a very large scale. So there is a possibility you can lose your birth as a human being. Maybe you can go back to the animal kingdom. You can go back to the animal category. And Okay. yes, and in animals also you have a category, because there is a category of consciousness. Got it. So अगर आपके कर्म बिल्कुल जानवरों से भी ज्यादा बदतर रहे होंगे इस जन्म में, तो अगले जन्म में आपको बेशक आपको वही जन्म मिलेगा जो जानवरों वाले कर्मों से आपको मैच करता होगा, जो जानवरों जैसी प्रवृत्ति रखता होगा. तो रीइंकारनेशन हाँ. तो होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये कह पाते हैं कि हाँ मैं पिछले जन्म में ऐसा था. कोई अगर अपने पिछले जन्म को याद नहीं रख पाता है, हम रीइंकारनेशन यहाँ पे हमारी मौजूदा विज्ञान की प्रोग्रेस के अनुसार हम किन चीजों को रीइंकारनेशन कहते हैं? उन लोगों को जो ये कह पाते हैं कि हाँ मैं पिछले जन्म में यहाँ पे था, मैं पिछले जन्म में वहां पे था, पिछले जन्म में ये मेरी धर्म पत्नी थी, ये मेरे माता पिता थे, ये मेरा भाई था, मेरा घर वहां पे था, मेरे ऊपर इतना कर्जा था, या मैं ये सब करता था. तो कोई व्यक्ति अगर इस जन्म में ये कह पाता है कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था, और उसकी पुष्टि अगर साइंस करता है, गॉट इट, तो हम उसको पुनर्जन्म मानते हैं.
अब यहाँ पे क्या है कि हमारी जो जो मानवता का जो प्रोग्रेस हुआ है, जो हमारी समाज की जो अब तक डेवलपमेंट हुई है, वो ज़्यादातर हुई है विज्ञान के आधार पे, ना कि आध्यात्मिक आधार पे। तो विज्ञान जिस चीज़ को कहता है कि ये पुनर्जन्म है, तो फिर हम उसी को पुनर्जन्म मानते हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हम याद भी नहीं रख पाते अपनी कि हम पिछले जन्म में कैसे थे, कैसे नहीं थे, ठीक है? तो उसके आधार पे हम नहीं बता पाते कि हमारा पुनर्जन्म है, ये कैसा है। करेक्ट। सो पुनर्जन्म तो होते हैं, चाहे विज्ञान उसको प्रूव कर पाता है नहीं कर पाता है, पुनर्जन्म होते हैं, चाहे वो डाउनग्रेड लाइफ में चले जाएं वो, या फिर वो अच्छी अपग्रेडेड लाइफ में चले जाएं, ठीक है? सो देयर इज समथिंग विच इज कीपिंग अकाउंट ऑफ every एक्टिविटी, every कर्मा दैट यू डू, एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड योर सटल पार्ट ऑफ योर स्पिरिट। उसको हम हिंदी में चित्रगुप्त भी कह सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना अपने वेद पुराणों में, हमारी धार्मिक कथाओं के अंदर, ये चित्रगुप्त कौन है? एक चित्रगुप्त वो हैं जिनको मृत्यु के बाद जिनके पास हमें ले जाया जाता है, वो आपका पूरा बही खाता खोलते हैं, आपका अकाउंट खोलते हैं, आपने ऐसे ऐसे करा है, ये सब करा है, ठीक है? तो उसके हिसाब से उसके अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा, ठीक है? और दिस इज नॉट समथिंग बेस्ड ऑन एनी सेक्रेट बुक, दिस इज कंप्लीटली अ साइंस, दिस इज कंप्लीटली अ स्पिरिचुअल साइंस। Okay, but when for animals, they have to eat the other animal. So does it fall under karma, or is that a bad karma for that animal? Because it is eating only for the to fill its stomach. So how is that taken? सी अगर हम जानवरों की बात करें, ठीक है, जानवरों का जो नेचर है, उदाहरण के तौर पे हम शेर ले लेते हैं, ठीक है? शेर को वैसे हम सामाजिक तौर पे एक जंगल का राजा भी मानते हैं, ठीक है? लेकिन शेर कभी घास नहीं खाता। 99% आपको लगेगा कि शेर कभी घास नहीं खाता। कभी कोई एक्सेप्शन कोई मिल जाए कि शेर घास खाता दिख जाए, हालांकि मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है? शेर दूसरे जानवरों का ही शिकार करके अपना पालन पोषण करता है, अपना पेट भरता है। तो शेर की ये फंडामेंटल नेचर है, ये उसका एक एसेंशियल बिहेवियर है, ये उसका नेचुरल आउटलुक है कि वो दूसरे जानवरों को मारकर ही अपना पेट भरता है। सो शेर अगर Exactly. दूसरे जानवरों को मार के अपना पेट भर रहा है, so शेर is not doing something which is against the law, which is against the Yes. fundamental principles of universe. Because शेर was designed, tiger was meant to eat other animals. That is what his consciousness is made to do. बट अगर इंसानों की Yes. चिंता को आप देखोगे, तो इंसान दूसरे मांस या दूसरे जानवरों को, या फिर जो आजकल जो हम नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो इंसान उस प्रवृत्ति का बिल्कुल नहीं बना। ये तो अब जाके हम लोग मांस मच्छी खाने लगे हैं, या दूसरे लोगों को हम दुख पहुंचाने लगे। सो द एसेंशियल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन or people is not meant to hurt other people, or to use other people and to kill other people and to eat non-veg and flesh. अगर शेर ऐसा करता है तो वो ऐसा करता है। अगर मच्छर किसी इंसान का खून पी रहा है, so that mosquito was built to do like this. That is completely his nature. Yes. So he is not going against the law, but humans are going against the law. So you mean to say people Absolutely. who are having non-vegetarian, they also fall into this karma? Yes. नॉन वेजिटेरियन के बहुत सारे नुकसान हैं। आप मांस खाते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है, ठीक है, उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है? और साइंटिफिक तौर पे हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, ठीक है? आप ये देखिए कि अभी अगर आप देखेंगे तो जो हमारी 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो 8 बिलियन की पॉपुलेशन हमारी धरती पे है, उसमें से लगभग करीब 90% लोग नॉन वेज खाते हैं या मांस खाते हैं, ठीक है? और जो लोग वेज खाते हैं, जो ग्रीनरी पे डिपेंडेंट है, जो नेचर पे डिपेंडेंट है, वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली हेल्दी हैं, बहुत लंबा जीवन जीते हैं, बहुत खुशी वाला जीवन जीते हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नेचर के अगेंस्ट जाता है, वो खुश भी नहीं है, और वो लंबे समय के लिए जी भी नहीं पाता, ठीक है? सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवन जीने के लिए आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे जापान में। जापान में एक शहर है जहाँ पे लोग, आपको हर दूसरा व्यक्ति वहाँ पे 100 साल से ज्यादा का उम्र का आपको मिल जाएगा। तो उसका कारण है, दे आर मोर कनेक्टेड टू नेचर, दे आर मोर कनेक्टेड टू ग्रीनरी, दे आर मोर कनेक्टेड टू द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ यूनिवर्स, या मतलब वास्तविकता के जो भौतिक सिद्धांत है, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके हिसाब से जीवन जीते हैं। ये मॉडर्न लाइफ का However, कॉन्सेप्ट है।
But Japanese are also eat